Hello and a very warm welcome to everyone. Today we are going to be discussing about something very, very interesting, something about a region of India which very few people know of and talk about. This is the Jammu and Kashmir region, but an area which is rarely spoken about, and most importantly, not much is known about it. So it's going to be a very, very interesting conversation. So this region is the Turtuk region in the Baltistan area of the northernmost part of India. So during the 1970 war, it saw some very, very significant events unfold in this strategic region of Turtuk, which is a small village in the Baltistan region, which used to be under the Pakistani control until India captured it during the conflict. So the strategic importance of Turtuk is it's located in the Shog Valley, and it's one of the northernmost villages of the Ladakh region. It lies near the line of control, very near to the line of control, close to the Siachen Glacier and the Karakoram Range, making it one of the most strategic importance places within India. So before the 1971 war, Turtuk used to be the Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan area. So during the 1971 war offensive, India launched an attack in this Ladakh sector to gain control over the strategically important territories. So on 14th of December 1971, the Indian Army's Ladakh Scouts, supported by other units, launched an operation to capture Turtuk from Pakistan. Colonel Chewang Rinchen, a highly, highly decorated officer from Ladakh, played a key role in leading this operation. So today we are very, very excited, and today we are very, very happy to have with us and to introduce Ms. Hasina Bano, a trailblazing journalist and vlogger from Bogdang Nubra Valley of Ladakh. A proud Balti woman, Hasina is deeply committed to sharing the untold stories and unique culture of her picturesque homeland. Hasina is the creator of the YouTube channel A Girl from Nubra Valley, where she produces engaging video blogs to raise awareness about the stunning yet lesser known region of Turtuk and its neighboring areas. Through her content, Hasina brings to light the rich traditions, the vibrant culture, and pressing issues of her community, bridging the gap between her remote village and the rest of the world. Welcome, Hasina ji. Thank So you so much. tell us about yourself. What does a girl from Nubra Valley signify? Actually, ma'am, from when I was in fourth class, I went with my family to Dehradun for higher studies because उस time पे इस वक्त in this in Nubra Valley there was no education for girls education mainly. So my father took we all family were boycott from our village. So we went to Dehradun for higher studies, and when I came back from Dehradun, then I was doing my journalism. I have done mass communication for 3 years. After that, News 18 appointed me as a news reporter. And when I reach here back to my village, then I found many problems and many problem that people were facing. And then I decided to be their voice and आई मतलब मैंने सोचा कि मैं अपना जो लोगों के अपने ज़रिए लोगों का जो बातें हैं पूरे पब्लिक तक पहुंचाऊंगी, लोगों तक पहुंचाऊंगी, खासकर गवर्नमेंट तक. Then I decided, firstly I was in News 18. I was sending news through News 18. Then I decided to uh, uh, expand my uh, sorry. Then I decided to make a YouTube channel, so that through that I can uh, मैं अपनी जो जो भी लोगों का जो प्रॉब्लम्स था उनको आगे तक पहुंचाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया.
And firstly, my YouTube channel was named as the Voice of Nubra Valley. And after that, when I find out that when I found out that कि लोग इंटरेस्ट के साथ मेरी जो वीडियोस को देख रहे हैं, और दे आर सीइंग माय वीडियोस, और बहुत आगे तक मेरी वीडियोस जा रहे हैं, देन आई डिसाइडेड टू चेंज द यूट्यूब चैनल नेम. एंड a girl from Nubra Valley means I belong to Nubra Valley. And I'm the only girl from Nubra Valley and only person from Nubra Valley who is showing all the problems, not only problems, Balti culture, Balti tradition, everything. So I decided to name it A Girl from Nubra Valley. And also because I belong to Nubra Valley, that's why I named it Girl from Nubra Valley, ma'am. Ji, Hasina ji, your journey has been absolutely fascinating, and I'm sure a lot of people would like to know more about, the struggles and all the challenges that you and your community have faced over the years. So my next question, what I would like to know is that post the 1971 war, unke results ke baad, overnight things changed for the people of that part of the country. You know, there were a lot of misinformation that was spread. There were a lot of wrong narratives that was going on, and overnight people just had to pack up and leave, but some did stay back. So if you can give us some insights, agar aap hum log ke sath share kare ki, the people who stayed back, what went through, what did they go through back then, and today, how do they feel back after all these years, after staying back in the Indian side? Please share with us. Of course, ma'am. When uh, in this month, मतलब इसी दिसंबर का महीना चल रहा था, then when Indian Army stepped in to Turtuk Valley, that time the people was very बहुत डरे हुए थे कि बिकॉज उनको बताया जाता था कि जो इंडियन आर्मी है वो इंसान खाते हैं, या दे डिडंट लाइक पीपल, दे टॉर्चर पीपल, ऐसे जो मिस कम्युनिकेशन जो लोगों तक पहुंचा हुआ था, दैट्स व्हाई दे वर वेरी अफ्रेड. एंड but when Colonel Sewangring Chenji arrived there, and when he consulted people and when he told people that नहीं सब जो वहाँ पे जो भी औरतें हैं वो मेरी मम्मी की जैसे हैं, जो भी वहाँ पे लड़कियां हैं वो मेरी बहनें जैसे हैं, when जब उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को वो किया, हौसला दिया, तब थोड़ा बहुत लोगों में इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा लोगों को भरोसा हुआ इंडियन आर्मी पे. और जो अचानक से देन अभी व्हेन वी टॉक टू पीपल फ्रॉम हियर फ्रॉम तुर्तुक वैली, दे यूज्ड टू से कि सुबह रात वो पाकिस्तान में थे और सुबह उठी वो हिंदुस्तान में आए. तो एक वो अचानक से जो चेंजेस उनके अंदर आई, उस वजह से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे वहाँ के लोग. और अभी अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं. और मैंने मेरी जो भी मैं चीजें पोस्ट करती हूँ उसमें भी मैं हर बार एक दिखाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान में आके हमारे जो नुब्रा वैली में खासकर तूर तुक त्यक्सी चुलुंगा थंग, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अभी खुश हैं कि वो हिंदुस्तान में हैं. और उस टाइम का जो दौर था, वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा वो डरे हुए थे लोग. ऑब्वियसली बात है कि जब अगर आप एक नई जगह आप आते हो अचानक से, वो भी आपको पता ही नहीं, और आप एकदम से बिल्कुल आप सोए हो पाकिस्तान में और आप उठे हो इंडिया में, तो एक डर रहता है कि नहीं लोग कैसे होंगे यहाँ के, और खासकर इंडियन आर्मी कैसा होगा. तो ये डर उनके अंदर था, जो कि कर्नल सेवांग चंद जी ने खत्म कर दिया उस वक्त. उनको राशन दिया. और सिर्फ वो नहीं, हमारे जो बोगदंग विलेज, some ancestors from our Bogdang village also went with Sewang Ringchen ji for the war from here, from Bogdang Nala. And that gave the people to trust Indian Army. और ऐसे यहाँ पे अभी अगर हम बात करें, अभी अगर हम यहाँ पे हैं और अभी हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो वो भी बस इंडियन आर्मी की वजह से. इस वन. Gee, thank you so much for sharing. I can just imagine what everyone must have gone through that time. So post ये सब होने के बाद, post the 71 war, once things
calm down a little bit, whatever. मतलब calm down तो उस तरह से नहीं हुआ होगा, but जो भी है, सुनने को आया है about, share with us about the protest and the daily struggles, as far as the people of that part, that region is concerned. We keep hearing about that there have been widespread protests due to heavy taxation on daily use items, basic necessities like clean water, reliable electricity, power cuts. So बहुत कुछ, a lot of things we keep reading and we keep hearing. How much of this used to be had happened, and what was it like, the daily struggles of the people there? यस मैम। तो अगर मैं बात करूं अपनी पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, तो इससे पहले मैं थोड़ा जो हम लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के रिलेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि वॉर से पहले लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, क्योंकि अगर हम बात करें लद्दाख में बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे और गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम राजा हुआ करते थे, तो उनकी आपस में लड़का लड़की की शादी तक एक फैमिली रिलेशन भी हो जाता था। तो बहुत अच्छा जो बिजनेस करना, ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा कनेक्शन था। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी गिलगित बल्तिस्तान इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है, और फिर भी अगर हम कनेक्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छा हमारी कनेक्शन है। इतना कनेक्शन है कि अगर लोग वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे थोड़ा भी उनको फील होता है या वो प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थरबाजी होती है, किसी को चोट लगता है, तो हमें यहाँ फील होता है और हमें लगता है कि नहीं, हम चैन की नींद कैसे सोए अगर हमारे भाई बहन वहाँ पे इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अगर आपने पूछा जो कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही फॉर छोटी से छोटी नीड्स के लिए भी उनको सड़क पे उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और उस चीज़ को लेके चाहे वो रोड ना, वहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लगभग बॉर्डर तक रोड, डबल रोड बन चुका है, और बीआरओ की तरफ से रोड अभी पूरा लास्ट बॉर्डर विलेज तक बन रहा है रोड। और गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल भी रोड बना हुआ नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हर रोज एक नया नया न्यूज आता है एक्सीडेंट्स का। तो हर चीज में जो है हमारे वहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में लोग फेस कर रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत अगर वो अपनी लाइफ वहाँ जी रहे हैं, वो भी बस इस वजह से क्योंकि हम एक बल्ती कम्युनिटी से हैं, तो हमारे अंदर एक जज्बा होती है कि हम खुद से चीजें करते हैं। तो वो बाहर जाके एम्प्लॉयड होके, कहीं उनको इस्लामाबाद जाके या बाहर जाके एम्प्लॉयड होके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह जो है गिलगित बल्तिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है। यस मैम। Yes, it's absolutely shocking, absolutely shocking. But I think it wouldn't surprise us, because सुनने में तो ये भी आया है. The other thing that I wanted to आपके साथ आपको पूछना चाहती थी is about the resource exploitation concerns. As I think we all know, that particular part is very rich in natural resources. So the locals argue that Pakistan exploits the region's minerals and natural resources. There have also been allegations of land grabbing by Pakistan, leasing acres to China. So इस बारे में कुछ बताइए when it comes to the exploitation of natural resources and how it is impacting the day-to-day life of the local people in the Pakistan occupied region area. यस मैम। तो मैम गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर वहाँ पे अगर हम थोड़ा भी अगर वहाँ पे हमने रिसोर्सेज को लेके वो करें, तो बहुत ही अच्छा जगह है। और वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रही है, रिसोर्सेज का किया जा रहा है गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। और लोग हर हर एक मुद्दे पे हर एक चीज़ पे इस बात को लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर अगर यहाँ यहाँ पे अगर हम अपने गांव में बात करें, तो हम अगर हम गांव गांव में जो लोग रहते हैं, हर चीज़ पे वो एक चाहे वो खेती बाड़ी हो या उस चीज़ पे डिपेंड है, और वहाँ के लोग भी उसी चीज़ पे डिपेंड है। बट इस चीज़ को, सॉरी मैं थोड़ा इस टॉपिक पे वो हो रही हूँ थोड़ी, आई कांट एक्सप्लेन दिस टॉपिक। No problems at all. No problems at all. आप अपना टाइम लीजिए and जिस जैसे भी आप कंफर्टेबल हो
आप उस तरह से बोलिए. ओके मैम. I can understand how emotional it will be because you're talking about the struggles of your people. आपके लोगों के struggles जो है, आपके लोगों के जो, and the biggest tragedy is that this story the world doesn't talk about it. किसी को पता भी नहीं है, which is why आप जैसे लोगों, people who are coming forward, who are talking about it, it is so important. Please take your time and comfortably, जैसे भी आप comfortable हो, just share with us so that people at least know कि क्या हो रहा है वहां पे और क्या हो चुका है आपके आपके to your people, to people in the Pakistan occupied area. बहुत कुछ हो चुका है मैम, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम. लोग अगर वो चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं वहाँ के लोग. और अभी अगर हम वॉर के टाइम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड फैमिलीज जो हैं जिनके जो कुछ जिनके हस्बैंड यहाँ है, वाइफ उधर है, जिनके बच्चे आधे यहाँ हैं आधे उधर हैं. तो उनके उनसे उनसे इंटरेक्ट करके हमें पता लगता है कि कितना जो है लोग यहाँ पे एक बहुत उसमें जी रहे हैं कि कोई कोई मतलब मर जाते हैं, बॉर्डर पार नहीं कर पाते अपने अपने लोगों से मिलने के लिए. तो बहुत ही ज्यादा एक, अगर हम पूरे डीप में जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा जो दुख भरी यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं जो कि लोग सुनेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे. अ, बहुत प्रॉब्लम जो है वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं मैम. तो उसको मैं अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने आऊँ तो फिर बहुत वैसे इमोशनल हो मतलब हो जाऊंगी. क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, रोज मैं स्क्रॉल करती हूँ, मैं देखती हूँ कभी गिलगित बल्तिस्तान में कभी ये हुआ है, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कभी प्रोटेस्ट में हाथापाई से लोग मर गए हैं, पत्थरबाजी से लोग मर गए हैं, कुछ मिल नहीं पाए हैं. और बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल है वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं मैम. तो इस चीज को बयां करने में वर्ड्स बहुत ही कम है मेरे में, मगर अगर मैं इस चीज को बयां करूं. Now I want to come back to the culture, the tradition, and the heritage of आपके community. So if you can share with us, I know that your sister is doing an absolutely phenomenal job uh, uh, with her music. So talk to us a little bit about the Balti language and your sister's efforts in promoting your language via her music. Please share with us. Yes ma'am. So my first of all I want to tell you all about Balti. Balti culture is a very different culture and very unique culture that शायद बहुत लोग को कल्चर के बारे में पता ना हो, बहुत लोग को बल्ती के बारे में पता ना हो, बल्ती सुना भी ना हो बहुत लोगों ने. पर बल्ती बहुत एक यूनिक कल्चर है. और अगर दीदी की स्ट्रगल की बात करें तो हमारे जो यहाँ पे हमें बाइकआउट तक किया गया था जस्ट बिकॉज माय सिस्टर इज सिंगिंग सॉन्ग. एक सिंगिंग करियर में उन्होंने हिस्सा लिया इस बात को लेके. तो दीदी मतलब अभी अगर बल्ती गाने की बात करें तो दीदी ने हमारे जो बल्ती उसमें ना कोई वल्गैरिटी है, ना कोई ऐसे रोमांटिक, ज्यादातर नहीं, ज्यादातर जो है कल्चर पे बेस्ड है. कैसे लोगों का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, और क्या है, क्या हर एक हमारे जैसे गांव में क्या चीज तू तू क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करता है. जैसे एप्रिकॉट है, फ्लावर्स है और बकवीट है, इन सब चीजों पे जो है हमारा जो कल्चर रिप्रेजेंट करता है. और बहुत ही यूनिक कल्चर हमारा जो बल्ती कल्चर हमारा बहुत यूनिक है. और अगर हम बल्ती कल्चर की बात करें तो हमारे में बल्ती लैंग्वेज भी यूज किया जाता है. और बल्ती आया ही बुद्धिस्ट से है. बल्ती एंड बौद्ध बौद्ध सेम थिंग बट डिफरेंट, डिफरेंट भी है और सेम भी है. बहुत यूनिक कल्चर है बल्ती. और अगर खाने पीने की बात करें, अगर बल्ती डिशेस की बात करें तो हमारे यहाँ जान बनता है, जान. और अपना जो है अलग मक्खन
होता है बल्ती में, और वो जान मक्खन के साथ खाया जाता है। और एक जो भी बल्ती डिशेस होते हैं बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आप बकवीट की बात करें तो बकवीट से किसीर बनता है। और बकवीट की अगर हम बात करें तो जो बकवीट का जो आटा है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। चाहे किसी को अगर कैंसर हो या किसी को कोई बीमारी हो, उस चीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है बकवीट डिशेस, बल्ती डिशेस का। तो ये है मैम बल्ती कल्चर के बारे में। एक्चुअली आई वाज आल्सो वेरी फैसिनेटेड टू हियर कि आपके जो क्विजीन्स है वहाँ पे काफी सारे वेजिटेरियन अच्छे गुड वेजिटेरियन डिशेस भी है, which was very interesting for me to know. So जी। I'd like to move on to the language and your script. What I understand is, as you said, आपने भी अभी अभी बताया कि आप लोगों का लैंग्वेज भी बहुत यूनिक है. You have your own script. I wanted to ask you, have you faced any kind of challenges with this? I mean, is there any kind of conscious effort to not promote your language, to not promote your script, to subvert the Balti culture? And how do you counter that? How have you fought with that for all these years? सो मैम, इफ यू टॉक अबाउट बल्ती लैंग्वेज, अगर बल्ती लैंग्वेज को प्रमोट करने की अगर हम बात करें तो अगर बहुत सारी जगह, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि इन स्कूल्स आल्सो दे डिडंट अलाउ अस टू स्पीक इन आवर लैंग्वेज। और वी यूज्ड टू स्पीक उर्दू और हिंदी इंस्टेड ऑफ आवर लैंग्वेज। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे उर्दू ज़्यादातर जो है मतलब इन मुस्लिम उसमें अगर उर्दू को ज्यादातर प्रमोट किया जाता है, बल्ती को बिल्कुल इग्नोर और दबाया जाता है। और जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर इफ आई हैव टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स, सो अगर मैं अपनी भाषा में अगर मैं भी यहाँ पे बोल रही होती तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती कि कितना जो है इमोशंस मेरे अंदर है इस चीज़ को लेके। बट हाँ, एक अपना पर्सनल जो लैंग्वेज होता है बहुत ज़रूरी होता है मैम। जिस जिस चीज़ को दबाया जा रहा है। और अभी जो है जैसे मेरी आपने बोला, मेरी जो दीदी ने अपना करियर सिंगिंग सिंगिंग करियर इसीलिए ही बनाया था कि वो अपनी जो बोलती लैंग्वेज को प्रमोट कर सके। और बहुत जगह इंडिया में भी बहुत जगह, देहरादून में भी अगर हम बात करें, देहरादून में भी बहुत बल्ती पीपल रहते हैं। और अंबाड़ी जगह है वहाँ पे भी बल्ती पीपल लोग रहते हैं। वो भी इवेंट्स वगैरह करा के प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को। और हम भी यहाँ पे कारगिल से बहुत सारे एंसिस्टर्स या बहुत सारे कारगिल से लोग आते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम Nice. इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे कि हमारा जो बल्ती कल्चर है वो अच्छे से प्रमोट हो और लोगों तक पहुंचे कि बल्ती कल्चर भी यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। बताइए, as far as the main source of livelihood is concerned, मतलब आपके उधर, what is the main source of livelihood of the people of that region? And I also wanted to ask you, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बन रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट हुआ है ऑन द लोकल इकोनॉमी एंड द लोकल पीपल, एंड कैसे हुआ है? तो मैम अगर हम सोर्स की बात करें यहाँ पे तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन टूरिज्म। और इफ वी टॉक अबाउट द फोर विलेजेस जो कि 1971 में इंडिया में आए हैं, अगर ये बोगदंग गांव है और चार जो गांव है वो 1947 में जो इंडिया में आए हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हो रखा है और ज़्यादा एम्प्लॉयड वहाँ पे हैं। क्योंकि जो टूरिज्म जब से 2010 से तुर्तुक वैली में टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, और तब से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो है लोगों के लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है। लोग बहुत ही ज़्यादा, पहले यहाँ से लोग जाते थे बाहर जॉब ढूंढने और वहाँ पे अ, गुजारा करने जाते थे, पैसे कमाने जाते थे। अब बाहर से लोग यहाँ पे काम ढूंढने आते हैं। बाहर से ज्यादातर बेरोजगार यहाँ पे एम्प्लॉयड होने आते हैं। तो इस चीज़ में पता लगता है कि जो टूरिज्म जो है इन यहाँ पे जो तुर्तुक वैली में है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा जो इनकम यहाँ पे हुआ है। लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। अगर हर एक घर में लोग अपने चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हर तरीके का जो है टूरिज्म की वजह से यहाँ पे लोग इनकम जो है लोगों का आ रहा है। So, यस मैम। so tell us about आपके, your people, the people in that region. आप उसका aspirations and ambitions of the people in that region.
क्या है? What is it that they are looking for? What do they want? What do they want to achieve? क्या share with us the aspirations of the local people. सो मैम, इन अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पे अ, जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब होता है हर जगह के लिए। तो नुब्रा वैली में खासकर हमारे गांव बोगदंग में जो सबसे ज़्यादा जो लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन आए और एक डिग्री कॉलेज जो है वो यहाँ पे आए, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों में जोश भरा हुआ है कुछ करने का, बट दे दिन उनको एक स्टेज नहीं मिल पाता है, और एक स्टेज की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। और अगर वो पुश मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत जोश और जुनून है, बट एक स्टेज की ज़रूरत है। और अभी धीरे धीरे जो है हाईलाइट हो रहा है तुर्तुक वैली, धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत लोग पहचान रहे हैं, लोग आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। तो इससे ये हुआ है कि बहुत अच्छा जो अभी लोग वो कर पा रहे हैं। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे पापा ने हम पूरे फैमिली को लेके बाहर गए थे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं था। गर्ल्स को एजुकेशन देना हराम माना जाता था कि नहीं, गर्ल्स लड़कियों को नहीं पढ़ने देना है, और लड़कियां सिर्फ किचन तक है, या किचन से बाहर नहीं निकलना निकलना है। ये थॉट्स जो है लोगों के अभी भी बहुत, हमारे गांव में बहुत लोगों के दिमाग में ये थॉट्स हैं। बट मेरे पापा ने इन सब के खिलाफ जाके हमें एजुकेशन दिया, और उस चीज़ का जो नतीजा अभी है कि हम जहाँ जहाँ से भी गुजरते हैं लोग हमें जानते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये है अहमद शाह की बेटी है, या ये न्यूज़ रिपोर्टर है। तो एक पुश की ज़रूरत है मैम यहाँ यहाँ के लोगों को, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट है। और सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कुछ चाहिए तो वो है गर्ल्स एजुकेशन, और एक गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो कि यहाँ नहीं मिल पाता है। और जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकली भी अगर किसी को खड़ा होना हो, अगर मुझे भी किसी या मेरी सिस्टर को कहीं खड़ा, मतलब एक पॉलिटिक्स में जाना हो, तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम वो है, जो इंस्पिरेशन है जो है वो है गर्ल्स एजुकेशन का। Yeah, so that brings me actually to the next question कि आपका expectations and अपेक्षा जो है from the government of India, from the local authorities, from the local government, क्या है? What is it that you want the government and the authorities to focus on as far as your region is concerned? नॉट मच मैम, आई ओनली वांट दैट जो जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्ल्स एजुकेशन वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नीड है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लोगों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्ती कमेटी में लोगों में बहुत जज्बा होती है कुछ करने की, बट एक स्टेज की ज़रूरत होती है जो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है लोगों को। और खासकर हम गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे बहुत खेती बाड़ी का काम हो या उतार चढ़ाव का काम हो, बहुत ही ज्यादा जो लड़कियां हैं इन्वॉल्व हैं, और फिटनेस के मामले में भी बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव है, हर चीज में एक्टिव है। अगर हम वो बात करें, बस एक यहाँ पे अगर गर्ल्स एजुकेशन अगर सही से हो तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इन गवर्नमेंट से मेरी यही अपेक्षा है कि जो लड़कियों को एक स्टेज या अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को, खासकर नुब्रा वैली में। और उस की कमी की वजह से यहाँ पे ना लड़कियां 12 के बाद शादी कर लेते हैं, या कॉलेज करने जाते हैं, उनको इतने फ्रीडम्स भी नहीं मिल पाते कि वो खुद से जाके बाहर जाके कॉलेज कंप्लीट करके वापस आए, या उनको नहीं अलाउ किया जाता, जस्ट बिकॉज ना एक तो कि सेफ नहीं है, या भरोसा नहीं है अपने लोग लड़कियों पर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बट गर्ल्स को 12th के बाद उनकी शादी किया जाता है, या ग्रेजुएशन अगर हो रहा है तो, अगर नुब्रा वैली में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, अगर वहाँ पे अ, उनको डिग्री अगर मिला तो ठीक, वरना उनको वापस बुला के उनकी शादी करा देते हैं 18 19 22 साल की उम्र में। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गर्ल्स एजुकेशन की। तो इसी की नीड है मैम। और अगर एक डिग्री कॉलेज अगर तुर्तुक वैली में अगर एक डिग्री कॉलेज भी अगर हो तो फिर सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे।
Absolutely. Girls' education. Education in general is one of the most important thing for any society. I would like now to invite my colleague Shweta. She is going to be joining us anytime now. I think she's already here with us. Shweta, if you're able to hear us, yes, Yeah, welcome. I hand it over to you. thank you, Hasina ji, and thank you, Urmi, for doing this session. And Hasina ji, it's really great to have you amongst us, and know about a region of Jammu and Kashmir, which is Baltistan. जैसे कि आपने बोला कि 1971 में ये जो एक छोटा सा स्लेवर है बल्टिस्तान का, वो इंडिया का हिस्सा बना। और Mhm. हमारे इंडियंस को ही बहुत नहीं पता है कि बल ये जो रीजन है हमारे इंडिया का भाग है, और उनके लोग कितने अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप बताइए, बाल्टी के लोग, वो लोग ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स होते हैं। जी, नुरबक्स शिया, यस नुरबक्स और शिया होते हैं। जी जी जी। यस यस। और जो हमारे जो कश्मीर में होते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। जी। तो गिलगित बल्टिस्तान में कैसा होता है? ज़्यादातर सुन्नी या शिया होते हैं, उनका मिक्स कैसा होता है? गिलगित बाल्टिस्तान में ज्यादातर शिया सुन्नी होते हैं, मतलब शिया होते हैं। अभी अभी अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नुरबक्श ज्यादा है। जैसे हम अगर हम बाहर जाके बोलते हैं, वो लोग पूछते हैं कि आप क्या हो, शिया हो सुन्नी हो, हम बोलते हैं हम नुरबक्श हैं, तो बोलते हैं नुरबक्श क्या है। तो ये लिटिल बिट सिमिलर टू मे बी सुन्नी, और बट सुन्नी ये शिया और नुरबक्श ज्यादातर जो है गिलगित बाल्टिस्तान में है। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमें जो समझ में आता है कि स्पेशली गिलगित बल्टिस्तान में बहुत डिफरेंट सेक्ट्स रहते हैं मुस्लिम यस के। जैसे आपने जैसे नूर बख्शी बताया, फिर आगा खानी भी होते हैं, फिर ट्वेल्वर शिया भी होते हैं, फिर जो शिया जो बल्टिस्तान में है, वो मुझे जो समझ में आया वो 95% लोग शियाज ही होते हैं, राइट? जो यस गिलगित में फिर भी जैसे हुंजा वैली वगैरह हो गया, वहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्ट्स मिले। तो आई थिंक ये बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है गिलगित बल्टिस्तान रीजन का, जहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं उसके कितने डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। तो तो ये जो डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, तो आपकी जो जो कल्चर होता है, जो आपकी जो प्री इस्लामिक कल्चर है, मुझे ऐसा आपको लगता है कि वो उसको ज्यादा स्टिक करते हैं? जो आपकी जो आपकी जो कल्चर है, जैसे वहां पे ना बुद्धिज्म, जैसे लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान में बड़ी बड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे आपने पहले बोला था। तो आपको यस लगता है वहां पे ऐसे जो उनकी जो कल्चर है उस पर बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और आपका जो रहन सहन है, आपका जो खाना पीना है, आपका जो डेली लिविंग है, उसमें उस एस्पेक्ट को देखने को मिलता है? यस मैम, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो एक फेस्टिवल होता है मैफंग का। और अगर मैफंग फेस्टिवल की बात करें तो मैफंग फेस्टिवल आया ही बुद्धिस्ट से है। और बहुत 700 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में पूरा बुद्धिस्ट था, और उस वक्त मनाया जाता था मैफंग फेस्टिवल। और मैफंग मतलब में मतलब आग, और फंग मतलब फेंकना। तो इस चीज को उस वक्त से जो है गिलगित बाल्टिस्तान में, जब 700 साल पहले से जब बुद्धिस्ट वहां पे था, तब से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और अभी भी बल्ती लोग और हम लोग भी यहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाते हैं मैम। तो इससे ये है कि बहुत ही सिमिलैरिटीज जो है बुद्धिस्ट लद्दाख और बुद्धि जो है गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी हर चीज में है मैम। रहन सहन, खाना पीना, माल मवेशी पालने का तरीका, या कुछ भी अगर हम लेके चले किस तरीके का खाना खाते हैं, जैसे हम जान मार खाते हैं, बलती चीजें खाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जो है सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलते हैं। और बुद्धिस्ट में भी, अगर बुद्धिस्ट में अगर कोई फेस्टिवल जैसे लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस वक्त हम यहाँ पे मेफंग मनाते हैं उसी वक्त लोसर मनाते हैं। तो मेफंग को न्यू ईयर के तौर पे भी मनाते हैं, जो कि लद्दाख ले में बुद्धिस्ट में लोसर के नाम से जाना जाता है। तो इससे है कि बहुत ही बिल्कुल एक कनेक्शन है मैम लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में। जी नहीं, ये तो बहुत ही जान के अच्छा लगा, क्योंकि अभी जब भारत सरकार ने उसको दो यूनियन टेरिटरी में जो डिवाइड किया है, तो उसमें गिलगित बल्टिस्तान और लद्दाख को उसी चीज उन लोगों को साथ में रखा है, शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथ में रखा होगा। यस मैम। राइट राइट। सो थैंक यू सो मच हसीना जी। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, उर्मी? No, I've almost asked everything that I wanted to ask, and I just wanted to tell Hasina ji ki agar if there's anything at all that you would like to add
for our viewers, for the world to know, please, share with us some, if there's anything that we have not spoken about or talked about. अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, तो just tell us that. यस मैम, तो मैं पर्सनली अपने साइड से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, जो गिलगित बल्तिस्तान जो इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वहाँ के जो लोग जो हर एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं, वो चीज़ हमसे नहीं देखा जा रहा है। वी आर हमें बहुत ही ज़्यादा जो है उदासी फील होती है, हमें बहुत ही ज़्यादा एक वहाँ पे जो वो लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें यहाँ दर्द होता है। तो उस चीज उसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगी कि कुछ भी करके अगर हम यूनाइट हो जाए एक साथ, तो इससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। चाहे डिवाइडेड फैमिलीज हो, जो अभी बहुत लोग वेट करते करते मर गए कि नहीं मिल नहीं पाए, या माँ बेटी या भाई बहन मिल नहीं पाए। तो हम नहीं चाहते कि जो और बच्चे खुचे यहाँ पे लोग हैं जो अलग हो रखे हैं। एक 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 बहुत लंबी स्टोरी है जो थंग, जो लास्ट बॉर्डर विलेज है गोवाली का, जिनके जो मम्मी पापा दोनों का डेथ हो गया था वहां पे, और दूर से वो बस जनाजा देख रहे थे बॉर्डर से, मतलब हमारे जो लास्ट बॉर्डर से वहाँ दूरबीन से जनाजा देख रहे थे। तो ये जो इमोशनल चीजें हैं, ये मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरे जो नुब्रा वैली या तुर्तुक वैली की आवाम की आवाज बन के मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी करके जो है हमें यूनाइट कीजिए। और मैं यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द जो है गिलगित बल्तिस्तान हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा बने। और इससे सबसे ज्यादा जो खुशी है पर्सनली मुझे होगी, और सबसे ज्यादा तो खुशी है जो हमारे यहाँ के लोग जो एक तरस रहे हैं, जैसे लोग पानी के लिए तरसते हैं, वैसे ही हम तरस रहे कि कब हमारे जो है भाई बहन हमसे मिलेंगे। तो बस इसी चीज की मुझे अपेक्षा है इंडियन गवर्नमेंट से। एब्सोल्युटली, आई थिंक इंडिया ये बोलती रहती है कि द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इंक्लूड्स गिलगित बल्टिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। Yes, एंड ma'am. शायद एक दिन ये चीज़ रियलिटी भी बन जाए। और बहुत अच्छा होगा मैम, टच वुड। Absolutely. Absolutely. That's all that we can all hope for. That such a beautiful culture, such a beautiful tradition, and such fascinating history, it should, it should get the credit that it deserves. यस मैम। Hopefully one day and soon enough, I'm sure. so with that, I think we would conclude. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Hasina ji, for your time. थैंक यू Thank सो you. मच मैम, थैंक यू। And we Pleasure. urge our viewers to please look up and read about Turtuk and understand a region of India that is that is a strategically important part of India. Thank you. Absolutely. थैंक यू सो मच। Thank you.